ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی غل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی غل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہیں، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی غل صنوبر کو دیے، مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی غل صنوبر ان چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پہ روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خبرگیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت سی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی پرخطر تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو لے کر نہ آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہزادی غل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پرخطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا،
लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और उनकी मलिका बहुत अच्छी हैं, वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं। इन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब उन पर वक्त पड़ा है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो परिंदा जल्द से जल्द लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूँ, ताकि उनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलिका की फ़िक्र दूर हो। वो बातें करते करते काफ़ी दूर निकल आए थे। इस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नज़र आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शौहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। ओ बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग ख़राब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है? सलीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर दहाइयाँ देने लगी और उसे ज़मीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को ज़मीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा कराहता हुआ खड़ा हो गया और बोला, बुरा हो उस बदबख्त का। मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। उसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं। भूख से बुरा हाल है। घर पहुँचें तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दिया। ये खाना उसकी माँ ने उसके साथ कर दिया था ताकि सफ़र के दौरान उसे भूख लगे तो वो उसे खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से उनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी उसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। इसी गांव में उन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और उसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक उनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को सफ़र यूं भी मुनासिब नहीं होता। शहरयार ने उनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान तुम बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में परिस्तान जा रहा है ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुले सनोबर के हवाले कर सके। उसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, परिस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर उन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। परिस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात बहुत हैं और उसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का रास्ता है। अगर घोड़ा तेज रफ्तार हो तो 1 घंटा में वहां पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हो गया। बूढ़े ने उसे परिस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर एक थैले में रखकर उसे दिए और बोला, परिस्तान के परिंदे अमरूद बहुत शौक से खाते हैं। ये फल परिस्तान में नहीं होता है, इसीलिए उनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो, मुझे यकीन है कि इनकी खुशबू वहां के परिंदों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे कर देगी। हो सकता है इनमें कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर उसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों अतराफ में हरी हरी घास थी। कहीं कहीं फूलों के पौधे भी नजर आ जाते थे।
इस रास्ते पर सफ़र करते हुए वो बहुत जल्द परिस्तान पहुंच गया। वो परिस्तान में दाखिल हुआ तो चारों तरफ बहुत चहल पहल नजर आ रही थी। हसीन और जमील परियां खूबसूरत और रंग बरंगी लिबास पहने इधर से उधर उड़ती फिर रही थीं। परिजाद बाजारों में घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ थे। शहरयार ने एक मैदान के चारों तरफ बहुत सारे परिजादों का झुमघटा देखा। वो करीब गया तो पता चला कि वहां 2 देवों की कुश्ती हो रही है और ये सब उन देवों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। उसका भी दिल चाहा कि देवों की कुश्ती देखे, मगर उसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और बोलते परिंदे की तलाश में चल पड़ा। उसकी नज़रें दरख्तों पर लगी हुई थीं ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत खूबसूरत परिंदे फिजा में उड़ते फिर रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाज़ों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी ज़बान में बातें कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद की काशें अपने सामने एक कपड़ा बिछाकर रख दी। अमरूदों की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वो वहां आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से उन्हें खाने लगे। और भाई परिंदों, क्या हाल है? उसने कहा, मगर किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि इन परिंदों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काशें खत्म हो गईं तो वो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। अचानक एक सुनहरे परों वाला परिंदा फिजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस, मुझे आने में देर हो गई है, सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। शहरयार उस सुनहरी परिंदे को इंसानी जबान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक बड़ा सा पीला पीला नरम गुदरेला अमरूद निकालकर उस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फुदकता हुआ उसके पास आकर बैठ गया और मजे से उसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह ही दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहां रहना बहुत अच्छा लगता है। वहां अमरूदों के भी बहुत से बाग हैं। मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे? मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दूर का सफ़र तय करके आ रहा हूं। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद कर करके हलकान हो गई है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर उसी शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहां महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। शहरयार ने कहा, मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था और इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई थी। वो एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखुशी उसके पास रहने को तैयार हूं, परिंदे ने कहा और उड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर उसके घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हुदूद में दाखिल हुआ ही था कि उसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। उसकी हालत इंतहाई खराब थी। उसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बहुत बोसीदा हो गए थे। उसका घोड़ा भी निहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम उस पुरखतर रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। सलीम ने भी उसे देख लिया था। वो उसके करीब आया, दोनों एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में इस सफर पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। शहरयार ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने उन बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया है। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? सलीम ने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चिल्लाकर कहा, शहरयार, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने उसे जाता देखा तो बोला,
अगर मैं उन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे 2 परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका ज़ाया कर दिया है। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सज़ा मिल गई है। ये कहकर वो भी अपनी राह हो लिया। शहरयार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुलसनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द उससे मानूस हो गया था। शहजादी जहां भी जाती वो उसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहजादी गुलसनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुलसनोबर को खुश देखकर बादशाह और मलिका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और उसे शाही मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया। अगले रोज हस्बे वादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशरफियां इनाम में दी। शहरयार ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुले सनोबर अपने सुनहरी परिंदे के साथ उसे खुदा हाफिज कहने आई। शहरयार महल से निकला तो उसका रुख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो उनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और उसकी बीवी उसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा सका था। ऐसे में शहरयार की उस रोज की दी हुई रकम उनके बहुत काम आई थी। शहरयार को देखकर दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर उन्हें सुनाई। फिर उसने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशरफियां बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद न करते तो मुझे वो परिंदा कभी भी ना मिलता। इतनी बहुत सी अशरफियां पाकर वो दोनों खुश हो गए और शहरयार को दुआएं देने लगे। इसके बाद शहरयार अपने घर आया। उसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम उनके हवाले किया। उसके माँ बाप तो खुशी से फूला नहीं समा रहे थे। वो इस बात पर भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने अपने मोहसिन को फरामोश नहीं किया था और इनाम का आधा हिस्सा उसे भी दिया था। कारोबार कर लिया। उसके बाप ने भी जंगल से लकड़ियां काटकर फरोख्त करना छोड़ दी और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में उनका कारोबार खूब चमक उठा। यूं एक लकड़हारे का बेटा कमज़ोर इंसानों से मोहब्बत और उनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। मैं जानता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। इससे हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, बस एक खुशी का सा एहसास होता है। अल्लाह आप सबको हंसता बसता रखे।